Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 5, that is Footprints Without Feet. Okay, so we were reading one story about scientist Griffin, and he was the person who was able to create his footprints without feet. Okay, why? Because he was invisible, right? And he was able to make his body totally transparent, right? So now what will happen next in the story, we will come to know. So let's continue. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Okay, so students, in the previous video we have read that Griffin was outside, right? He was at the clergyman's house to rob his money, right? And for Mrs. Hall and her husband, it was opportunity for them, right, कि वो उस रूम के अंदर एंटर कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए, इंक्वायरी कर पाए अबाउट ग्रिफिन, राइट? सो नाउ दे आर इनसाइड द रूम और वो चीज़ों को देख रहे थे, राइट? देन सडनली क्या होता है, मिसिस हॉल heard a sniff close to her ear, right? So what is sniff? Sniff means जब भी हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं, right? So उस टाइम जो आवाज़ होती है, हम जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, so वो जो आवाज़ होती है that is called sniff. So उनको अपने कान के पास ऐसी आवाज़ आई that someone is there and that person is sniffing. Okay, a moment later the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Okay, and after some time something very strange happened. And what was that? A moment later she found that the hat that was on the bedpost. Okay, so what is bedpost? Here in the picture we can see, right? So bed के जो ये जो corners होते हैं, right? So corner की जो design होती है that is known as bedpost. So जो bedpost थी, right, इसके ऊपर hat थी. Okay, so we have read कि जो ग्रिफिन जो था ये एक hat पहना करता था हमेशा, right? So उसकी जो hat थी ये यहाँ bedpost पे रखी हुई थी. Then suddenly जो hat थी ये यहाँ से leaped up होती है, jumped हो जाती है and dashed itself into her face, right? So जो hat है वो अपने आप jump होती है और ये hat फिर अपने आप को मिसेस हॉल के फेस से hit कर लेती है, right? जो hat यहाँ पे रखी हुई है, बेड पोस्ट पे रखी हुई है, सडनली अपने आप वो ऊपर उठती है, जंप करती है और मिसेस हॉल के फेस पे आके हिट करती है, right? So this is something quite strange. Then the bedroom chair became alive and after that the chair that was there in that room, in that bedroom, that chair became alive. How? Springing into the air. Suddenly this chair springed into the air. Spring means to move or jump suddenly, right? So suddenly this chair jumped into the air and it charged against at her legs foremost, right? So ऐसा लगता है कि जो चेयर है वो अलाइव हो चुकी है, वो चेयर भी जंप करती है और फिर वो मिसेस हॉल की तरफ चार्ज करती है, एक तरह से अटैक करती है और जो चेयर के लेग्स थे वो कैसे थे, वो फोरमोस्ट थे, यानी मिसेस हॉल को फेस करते हुए वो चेयर मिसेस हॉल की तरफ आ रही थी मिसेस हॉल को अटैक करने के लिए, राइट? सो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेंज थी, बहुत ही एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी ये, बट हम सबको पता है ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल थी, बिकॉज नाउ ग्रिफिन इज देयर इनसाइड द रूम. अब वो क्लर्गीमैन के घर से यहाँ आ चुका है और वो रूम के अंदर है एंड ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. वो ही ये सब चीज़ें कर रहा है एंड बिकॉज ही इज़ इनविजिबल, हिज बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, दैट्स वाई no one is able to see him. Okay, as she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out the room and then appeared to slam and lock the door after them, right? But जो लैंडलॉर्ड है और जो उनकी वाइफ है मिसेस हॉल, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, सरप्राइज थे कि क्या हो रहा है, हैट अपने आप जंप कैसे कर सकती है, चेयर अपने आप से जंप करके अटैक कैसे कर सकती है. सो ऑब्वियसली दे वर फुल ऑफ टेरर, राइट? और बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड थे, टेरिफाइड थे और वो वहाँ से बाहर जाना चाहते थे. तभी वो जो चेयर जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई थी, जो कि एक तरह से अलाइव हो चुकी थी, दैट चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, राइट? सो चेयर उन दोनों को पुश करके बाहर निकाल देती है रूम से और बाहर जाने के बाद जो डोर है वो अपने आप से बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है, राइट? सो व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड ऑल दिस? वी ऑल नो अबाउट द मिस्ट्री, बट फॉर द लैंडलॉर्ड एंड फॉर हिज वाइफ मिसेस हॉल this was something obviously very shocking, very surprising thing, right?
मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, राइट। सो मिसेस हॉल इतनी ज़्यादा सरप्राइज थी, शॉक्ड थी इन सब इवेंट्स के चलते कि जब वो स्टेयर्स पे जा रही थी, सो वो एक तरह से स्टेयर्स पे फेल डाउन हो जाती, बिकॉज शी वॉज सो हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मीन्स इमोशनल रिएक्शन, राइट। सो शी वॉज इन सो मच इमोशनली रिएक्ट कर रही थी। वो कैसे पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्टेयर्स में गिर ही जाती, ओके। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, right? So ये चीज़ें उन्होंने खुद ने देखी हैं, मिसेस हॉल ने, उनके हस्बैंड ने, ओके। अब वो अपने आप को एक तरह से वो गैस कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो वो गैस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ओके। सो नाउ शी वॉज कन्विंस्ड, कन्विंस मीन्स फॉर्म इन बिलीफ, ओके। सो शी वॉज हैविंग दिस बिलीफ, शी वॉज very determined about this thing that the room was haunted by spirits। so उनको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, चेयर मूव हो रही है, हैट अपने आप जंप कर रही है, किसी चीज़ ने हमें पुश करके बाहर निकाल दिया, राइट। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो शी वॉज हैविंग दिस बिलीफ कि वो जो रूम है, दैट रूम इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, राइट। हॉन्टेड मीन्स फ्रिक्वेंटेड बाय अ गोस्ट, राइट। सो उनको लगा कि वो जो रूम है वहाँ पे स्पिरिट्स और गोस्ट जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, ओके। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और जो स्ट्रेंजर है, जो साइंटिस्ट उस रूम में रह रहा है अभी, सो ही वॉज एबल टू समहाउ टू कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, ओके। सो उनको लगा कि जो साइंटिस्ट है वहाँ पे, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट वहाँ रह रहा है रूम के अंदर, उसने इन सभी स्पिरिट्स को, इन सभी गोस्ट को क्या करा है, फर्नीचर के अंदर एंटर करा दिया है, राइट। इसीलिए जो फर्नीचर है उनके अंदर अब स्पिरिट्स हैं, गोस्ट है, और इसीलिए फर्नीचर अपने आप मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ओके। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, राइट। सो उनको इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी इन सब चीज़ों से, दैट शी मोन्ड, मोन मीन्स टू मेक अ लो साउंड टू एक्सप्रेस सफरिंग, राइट। सो शी सेड दैट आज उस चेयर ने मुझ पे अटैक किया, राइट, बट दिस इज द सेम चेयर ऑन विच माई पुअर मदर यूज टू सिट, राइट। सो वो कह रही है कि इसी चेयर पे मेरी मदर बैठा करती थी और आज ये चेयर मुझ पे अटैक कर रही है, ओके। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ओके। सो शी सेड कि इसी चेयर पे हर मदर यूज to sit, but now this was the chair that was rising up against her, okay. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, okay। so अभी जो बात थी धीरे धीरे सबको पता चलती है, सब विलेजर्स को, नेबरर्स को पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो वो सब भी वहाँ पे आते हैं और उनके मन में क्या था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, जो ट्रबल, जो प्रॉब्लम है। सो दे वर हैविंग दिस ओपिनियन दैट दिस ट्रबल इज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, राइट। सो दे वर होल्डिंग दिस ओपिनियन दैट सम विच जो होती हैं उन्होंने कुछ किया है, कुछ मैजिक स्पेल किया है, एंड बिकॉज ऑफ डैट ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं, ओके। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, ओके। सो सम नेबर्स वर हैविंग दिस ओपिनियन अबाउट विचक्राफ्ट, बट वन थिंग वॉज श्योर, राइट, वेदर इट वॉज विचक्राफ्ट और नॉट, बट एक चीज़ के बारे में सभी श्योर थे, सभी नेबर्स, सभी विलेजर्स श्योर थे, और वो चीज़ क्या थी कि ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, जो ये ग्रिफिन है, राइट, ही इज हैविंग अ हैंड, उनको लग रहा था कि इसका जरूर हाथ है इन सब चीज़ों में। वाई? क्योंकि जो क्लर्गीमैन के घर में जो थेफ्ट हुआ था, राइट, अब क्लर्गीमैन ने भी सबको बताया कि कैसे उसके घर पे सुबह चोरी हो गई थी, और उन्होंने आवाज़ सुनी, एंड व्हेन दे वेंट इनसाइड द रूम देन द रूम वाज एम्प्टी, नो वन वाज देयर इनसाइड द रूम, ओके। जब उसने ये बात सबको बताई और मिसेस हॉल ने और उनके हस्बैंड ने अपना एक्सपीरियंस सबको बताया, तो सबको लग रहा था कि किसी विचक्राफ्ट की वजह से ये हो रहा है, बट स्टिल दे वर हैविंग दिस फर्म बिलीफ दैट वेदर विचक्राफ्ट और नॉट, बट दिस स्ट्रेंज साइंटिस्ट, दिस पर्सन ग्रिफिन, ऑब्वियसली ही इज हैविंग हिज हैंड इन ऑल दीज थिंग्स, इन ऑल दीज इवेंट्स, ओके। सो वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड हो गया था ग्रिफिन। अब सभी विलेजर्स ग्रिफिन पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे, ओके। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money, okay। अब विलेजर्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं ग्रिफिन पे, और उनका जो सस्पिशन था, दैट सस्पिशन इवन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उनका सस्पिशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वाई? when he suddenly produced some ready cash, when Griffin was able to give some ready cash, okay। so how he is having that cash?
cash, he robbed this money from clergyman's house. Okay, so now he gave that money. So now when he produced this money and he admitted that he was not having money a little earlier, but now he is having that money. So now the suspicion of all the villagers that grew even stronger. Okay, कि कैसे possible है कि इसके पास इतना मनी आ गया अचानक से. ओके, द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. ओके, सब सभी को बहुत ज़्यादा डाउट है ग्रिफिन पे, बिकॉज एक तो स्टार्टिंग से उसका अपीयरेंस, उसके जो लुक्स हैं डेट आर क्वाइट स्ट्रेंज, राइट. उसकी जो हैबिट्स हैं, उसका जो टेम्पर है वो भी बहुत ज़्यादा अनकॉमन है. ओके, और अचानक से उसके रूम में फर्नीचर ऐसे मूव कर रहा है. क्लर्गीमैन के घर पे चोरी हो गई है, राइट, एंड नो वन वॉज देयर टू बी सीन. ओके, सो ऐसे में सबको बहुत डाउट हो रहा था. सडनली ही वॉज हैविंग दैट मच ऑफ कैश विथ हिम. ओके, दैट्स वाई द विलेज जो कांस्टेबल जो था, सब लोग उसे बुलाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें पुलिस में पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. ओके, सो जो कांस्टेबल था उसको बुलाया गया था, बट जो मिसेस हॉल थी, राइट, शी डिड नॉट वेट फॉर द कांस्टेबल. वो कांस्टेबल के आने तक कभी वेट नहीं कर पा रही थी, एंड शी वेंट टू द साइंटिस्ट, राइट. वो डायरेक्टली साइंटिस्ट के रूम में जाती हैं, और जो साइंटिस्ट था, दिस साइंटिस्ट समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. वो उसी बेडरूम में से बाहर आ जाता है जिस बेडरूम में थोड़ी देर पहले मिसेस हॉल अपने हस्बैंड के साथ गई थी, राइट. और दोनों ने देखा था दैट नो वन वाज देयर इनसाइड द रूम. रूम में कोई भी नहीं था, रूम बिल्कुल एम्प्टी था. लेकिन अब उस एम्प्टी रूम में से ये साइंटिस्ट ग्रिफिन बाहर आ जाता है, एंड दिस थिंग वाज क्वाइट मिस्टीरियस. ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था कि ऐसा कैसे हो सकता है जब बेडरूम बिल्कुल एम्प्टी था. सो उस एम्प्टी बेडरूम में से साइंटिस्ट बाहर कैसे आ सकता है, राइट. एंड वी ऑल नो अबाउट दिस मिस्ट्री कि ग्रिफिन वहाँ पे ऑलरेडी था, बट एट दैट टाइम ही वॉज वेयरिंग नो क्लोथ्स ओवर हिज बॉडी. दैट्स वाई ही वॉज इनविजिबल, एंड मिसेज हॉल अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड दे वर नॉट एबल टू सी हिम, राइट. बट नाउ ही वॉज वेयरिंग क्लोथ्स, दैट्स वाई सब उसको देख पा रहे थे, और अब वो सारे क्लोथ्स पहन के रूम से बाहर आ गया था. ओके, I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. Okay, so जो मिसेस हॉल हैं वो अपने फर्नीचर को लेके, स्पेशली उस चेयर को लेके, यानी वो बहुत ज़्यादा अनॉयड है, डिस्टर्ब्ड है. ओके, सो उन्होंने सबसे पहले यही बात पूछी. she demanded, she asked that I just want to know that what are you doing, right, what have you done to my chair. Okay, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. Okay, so this was one thing that she was also so much surprised of, that how is it possible that he was able to come out of an empty room, and how is it possible that he entered into a locked room, right. So कह रही थी कि रूम तो लॉक था. ओके, so तुम रूम के अंदर कैसे चले गए, कब चले गए, और उस एम्प्टी रूम में से तुम अब बाहर कैसे आ गए हो. So what is the mystery? Okay, how is it possible? The scientist was always quick tempered. Now he became furious. Okay, सब जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, he was always quick tempered, right. उसको बहुत जल्दी हर बात पे गुस्सा आ जाता है. Okay, that we have read earlier also. So now he was furious. He was very much angry. Okay, you don't understand who or what I am, he shouted. Okay, so he started shouting and he said that you don't understand who I am or what I am. Okay, very well, I will show you. So he was so annoyed, he was so upset that he said that I will show you who I am. Okay, suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. Okay, and suddenly what did he do? He started throwing off his fake face, right. जो उसका face था that was fake, right, real नहीं था. So उसने सारी चीज़ों को उतारना स्टार्ट कर दिया. He threw off the bandages, whiskers, spectacles and even his fake nose. Okay, it took him only a minute to do this and it took only 1 minute for him, right. उसको अपना सारा जो उसने अपने एक रियल फेस को हाइड करने के लिए जो उसने फेक फेस बनाया था, सो उसको करने में, उसको हटाने में उसको ओनली 1 मिनट का टाइम लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, राइट. अब जब उसने अपनी सारी चीज़ें जो उसने फेक यूज़ करी थी एक फेक फेस के लिए, जब उसने वो सारी चीज़ें हटा दी, राइट, सो नाउ ही वॉज हैविंग नो फेस, नो हेड,
राइट. सो जो जितने भी लोग थे ऑब्वियसली दे वर सो हॉरिफाइड, दे वर सो फ्राइटन, राइट. व्हाई? बिकॉज अब वो एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ देख रहे थे हु वॉज हेडलेस मैन, हु वॉज हैविंग नो हेड ओवर हिज शोल्डर्स, राइट. अब उसकी बाकी की बॉडी तो क्लोथ्स उसने पहने हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ ये एक नॉर्मल पर्सन है हम सब की तरह, बट ऊपर से शोल्डर के ऊपर से अब उसके फेस नहीं था, ही वॉज हैविंग नो हेड, राइट. सो ऑब्वियसली ऑल द पीपल they were so horrified, they were so frightened, okay. Mr. Jeffers, the constable, now arrived, okay. So at this time the constable, the village constable, name of the constable is Mr. Jeffers, now he arrived, okay, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head, okay. So when he came here, when he arrived, and he also saw this scientist Griffin, and he saw him as a headless person, okay. So he was quite surprised to find that he had to arrest a man who is having no head over his shoulders, okay. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty, okay. But this constable Mr. Jeffer, okay, he was very much dutiful, okay, और उनको अपनी ड्यूटी करने से prevent means to stop, so it was not that easy to stop him, to prevent him for doing his duty, okay. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head, okay. So he was very dutiful person, and for him अगर किसी magistrate ने एक warrant इशू किया है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड नो मैटर ही इज हैविंग हेड और ही इज विदाउट हेड, ओके. सो मिस्टर जेफर की ड्यूटी थी एंड ही वाज वेरी ड्यूटीफुल, और वो डिटरमिन थे दैट ही विल अरेस्ट दिस साइंटिस्ट ऑल्दो ही इज हैविंग नो हेड, स्टिल ही हैड टू अरेस्ट हिम, ओके. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another, okay. So now there was one scene that was quite remarkable, right. Remarkable means worthy to notice. तो एक ऐसा सीन था जो जिसको हर किसी ने नोटिस किया हुआ है, बिकॉज अब वो जो पुलिसमैन था, जो कांस्टेबल था, ओके, ही वॉज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, ओके. सो अब जो साइंटिस्ट ग्रिफिन ये फिर से इनविजिबल बनता जा रहा था, और कैसे इनविजिबल बन रहा था, बिकॉज नाउ ही वाज थ्रोइंग ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, राइट. वो एक एक करके अपने सारे गारमेंट्स, अपने सारे क्लोथ्स हटा रहा था. उसने अपनी हैट हटाई, अपना ओवरकोट हटाया, ओवरकोट के अंदर उसने जो जो गारमेंट्स पहने हुए थे वो एक एक करके अपने सारे गारमेंट्स हटाता जा रहा था, और जैसे जैसे उसके गारमेंट्स हट रहे थे ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, ओके. Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all, okay. So still he was becoming more and more invisible, but suddenly finally when he threw off his last shirt that he was wearing, right, last में जो उसने एक शर्ट पहनी हुई थी, जब वो शर्ट को भी उतार देता है तब वो अब क्या बन चुका था, वो completely invisible बन चुका था फिर से, okay. And now constable found himself struggling with someone he could not see at all, okay. वो टोटली कंप्लीटली इनविजिबल बन गया था. सो ऑब्वियसली मिस्टर जेफर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था दैट हाउ कैन ही अरेस्ट अ पर्सन हु इज इनविजिबल, ओके. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere, okay. So some people, or we can say some villagers or some neighbors who were there, and they tried to help him, they tried to help the constable Mr. Jeffer to arrest this scientist Griffin, but these people found that someone was hitting them by blows, okay. And who was hitting? Obviously Griffin was hitting them, and उनको ऐसा लग रहा था कि जो blows हैं that seemed to come from nowhere, right. वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो ब्लोज है ये कहाँ से आ रही है, कौन उन्हें हिट कर रहा है. सो ग्रिफिन जो था वो completely इनविजिबल बन चुका था, एंड नाउ ही वॉज हिटिंग ऑल द पर्सन हु वर हेल्पिंग मिस्टर जेफर्स, ओके. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, okay. Finally क्या होता है, जो कांस्टेबल है मिस्टर जेफर्स, he was knocked unconscious, okay. So finally जो ग्रिफिन है ये कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को भी हिट कर देता है, और उसकी वजह से मिस्टर जेफर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, ओके. एंड जब और ये उसने हिट कब किया, जब जो कांस्टेबल थे ही वॉज मेकिंग अ लास्ट
attempt to hold on to the unseen scientist. Okay, so जब उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट किया था ग्रिफिन को पकड़ने का, अरेस्ट करने का, so at that time he hit this constable and he was unconscious. Okay, they were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Okay, so अब वहाँ पे सब आवाज़ आ रही थी hold him, पकड़ो पकड़ो. Okay, and these noises were very nervous, very excited. Okay, but the writer is saying that this was easier said than done. It means ये बात कहना तो बहुत easy था, hold him, right? But हम उस पर्सन को कैसे hold करें, कैसे अरेस्ट करें जो कि इनविजिबल है, जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं, सो आप उसको कैसे होल्ड कर सकते हो, राइट? सो ये कहना तो बहुत ईजी था होल्ड हिम, पर इस चीज को करना दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. Okay, finally Griffin was one more time he was successful to shake himself free, right? जिसने बाई चांस उसको कहीं से पकड़ भी लिया था, सो वो अपने आप को फ्री करने में सक्सेसफुल हो जाता है. एंड नाउ नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ओके, सब किसी को नहीं पता था कहाँ से पकड़े, कैसे पकड़े. सो वन मोर टाइम Griffin was able to escape from here. One more time he was very successful to escape from this scene also. Okay, so students, the chapter ends here. So we have read about Griffin the scientist. He was very genius scientist, right? But he was genius, but he was not that much of worthy. Why? Because he was not using his talent, he was just misusing his talent, right? So we can say yes, he was genius, he was very very intelligent scientist, right? But वो अपनी इंटेलिजेंसी का, अपने टैलेंट को यूज नहीं कर रहा था किसी अच्छे काम में. he was just misusing all his talent, right? So this was the chapter. I hope the chapter is clear to you all. In the next video we will see the comprehension part. So see you in the next video.